محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عربی سیکھیں، قرآن سمجھیں اس کورس کا سبق نمبر 14 کا بی والا پارٹ سیکھ رہے ہیں، اور آج کا یہ سبق گرامر قواعد کے تعلق سے ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم فعل کا بیان سیکھ رہے ہیں، اور اس فعل کے بیان میں ہم نے اس سے پہلے سیکھا، یہ بتایا گیا کہ فعل کی 3 بڑی قسمیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر، لیکن اس میں سے ہم 2 تفصیل کے ساتھ سیکھ چکے ہیں، فعل ماضی بھی اور فعل مضارع بھی، اور اس کے بنانے کا جو ٹیبل ہے وہ ہم نے بتایا ہے۔ ہر فعل سے کس طریقے سے ہم ٹیبل بناتے ہیں کہ فعل ماضی، کوئی فعل کیسے پتہ چلے گا پاسٹ ٹینس ہے، یہ ماضی ہے تو علامات آخر میں لگتی ہیں، کیسے پتہ چلے گا یہ فعل مضارع ہے یعنی پریزنٹ فیوچر ہے تو علامات اس کی شروع میں لگتی ہیں۔ یہ تفصیل کے ساتھ ہم اس پر بحث کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، پڑھا چکے ہیں، اس کی ایکسرسائزز بھی ہم دے چکے ہیں۔ گزشتہ ویڈیوز آپ ہماری ضرور دیکھیں اس ویڈیو کے دیکھنے سے پہلے۔ اب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ گزشتہ یعنی اس سے پہلی والی ویڈیوز ہم کہاں سے دیکھیں؟ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں۔ تو جہاں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کے نیچے یہاں چینل کا نام لکھا ہوا ہے الکتاب گائیڈ آفیشیل۔ یہاں پر اگر آپ کلک کرتے ہیں، کلک کرنے کے بعد یہ ہوم پیج آپ کے سامنے کھلے گا اس طرح سے۔ یہاں سبسکرائب کا بٹن ہے، اسے سبسکرائب کریں، اور یہاں پر پھر اس صورت میں یہ یہاں پر آپشن آئیں گے، تو یہ آل والا اس آپشن کو کلک کریں گے، بیل آئیکن، تاکہ یہ سب سے پہلے ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچیں گی۔ اور یہاں پر جب آپ یہ ہوم پیج کھولیں گے تو یہاں لکھا ہوا ہے پلے لسٹ، اس پلے لسٹ پہ آپ کلک کریں گے۔ پلے لسٹ پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا پیج کھلے گا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں فولڈر، یہ عربک کا فولڈر ہے، اسی طریقے سے پارہ ام کا فولڈر ہے، نماز کا فولڈر ہے، اسی طریقے سے نورانی قاعدے کی جو ویڈیوز ہم بنا رہے ہیں اسی فولڈر میں تمام جو بھی کورسز ہمارے ہیں ترتیب کے ساتھ ویڈیوز آپ کو ملیں گی، جس فولڈر میں سے بھی آپ دیکھنا چاہیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں، اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں فعل ماضی، فعل مضارع تفصیل کے ساتھ۔ اب ہم سیکھیں گے آج سے فعل امر اور فعل نہی کا بیان۔ امر مطلب ہے کسی کو حکم دینا، آرڈر دینا، نہی یعنی روکنا کسی چیز سے۔ اب فعل امر بنانے کا کیا طریقہ ہے، فعل نہی بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ فعل امر اور فعل نہی میں ہم سامنے والے سے یعنی آپ سامنے والے کو حکم دے رہے ہیں، یہ والے سے پہلے سیکھیں گے، واحد اور جمع، حاضر کے سے۔ جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے سبق میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ 3 حرفی فعل یعنی فعل میں کم سے کم 3 حروف ہوتے ہیں، 3 حرفی فعل کے 4 ابواب ہوتے، 6 ابواب ہیں، لیکن ہم وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں جو زیادہ استعمال ہے قرآن میں بھی اور عربک لینگویج میں بھی۔ تو 4 ابواب، 3 حرفی فعل کے 4 سٹائل، 4 ابواب، اسے ہم ثلاثی مجرد کے ابواب بھی کہتے ہیں۔ تو 3 حرفی فعل کے 4 باب، یہ 4 ابواب کی پہچان کیسے ہے یہ ہم تفصیل سے اس سے پہلے والی ویڈیوز میں سکھا چکے ہیں، سبق نمبر 12 اور 13 میں، بی والے پارٹ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باب کی پہچان۔ یہاں ہم اس طرف نہیں جائیں گے، یہاں ہم جو بتانا چاہتے ہیں کہ فعل امر بنانے کا کیا طریقہ ہے، فعل نہی بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ تو عین کلمے کی حرکت، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ عین کلمے کی حرکت، عین کلمے کی حرکت ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ ہم وزن نکالتے تھے فعل سے، یعنی ہمارے پاس ایک لفظ ہے فعل اور دوسرا ہے یفعل، مضارع یفعل، تو فعل یفعل، تو فا کلمے کی جگہ جو حرف ہے فا کلمہ، عین کی جگہ جو حرف ہے وہ عین کلمہ، تو عین کی جگہ یہاں پر تا ہے اور یہاں پر بھی تا ہے۔ ماضی میں جو عین کی جگہ ہوگا مضارع میں بھی وہی حرف عین کلمے کی جگہ ہوگا۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم تفصیل سے اس پر بحث کر چکے ہیں، تو آج جو بتانا ہے وہ یہ غور سے سمجھیں۔ عین کلمے کی حرکت کو ہم دیکھیں گے، مضارع سے ہم فعل امر بناتے ہیں، فعل امر ہم مضارع سے بناتے ہیں، مضارع سے سامنے والے سیگے سے امر بناتے ہیں، جیسے یہاں پر ہے تفتحو، تفتحو،
और यफ़अलु से आएगा तफ़अलु, तफ़अलु। तो अलामत मुजारे यानी फ़ैले अम्र हम कैसे बनाते हैं? मुदारे से, सामने वाले से। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अलामत मुजारे यानी मुजारे की जो पहचान है, फ़ैल मुजारे की जो अलामत है ता, इसे हम हटाएंगे यहां पर। अब यहां बचेगा फा, और ये फा साकिन है। इसको जरा पढ़ के दिखाएं। ये हम पढ़ नहीं सकते, फा साकिन है, पढ़ नहीं सकते। इसलिए हम शुरू में क्या करते हैं? यहां पर हमज़े वस्ल यानी शुरू में हमजा हम लगाएंगे। अब ये अलिफ जो है, इस पे जबर लिखें, जेर लिखें या पेश लिखें, अब ये बात सीखने की है, इसे गौर से समझें। अगर आइन कलमा यानी बीच वाला हर्फ जो आप देख रहे हैं यहां पर, बीच वाला हर्फ, यहां पर ये बीच वाला हर्फ यानी आइन कलमा, इस पे अगर जबर होगी, यहां जैसे बताया गया है, आइन कलमा जबर है, यहां पेश है, यहां जेर है और यहां पर जबर है। तो आइन कलमा यानी बीच वाला हर्फ, इस पे अगर जबर हो, जेर हो, जबर जेर जबर, यानी तीन अबवाब में यहां भी जबर है, देख रहे हैं आप, यहां पर जेर है और यहां पर भी जबर है। तो अगर आइन कलमा जबर हो तो ये जो अलिफ हमने शुरू में लगाया, इसके नीचे जेर ऐड करेंगे, ये जेर लगाएंगे। अब क्या बना? इफ आलू। लेकिन अभी बात बाकी है। माजी में आखिरी हर्फ पे जबर होता है, मुदारे में आखिरी हर्फ पे पेश, लेकिन जो अम्र होता है, अम्र में आखिरी हर्फ साकिन होता है। इसलिए हम यहां पर जो पेश है, इसको जज़म में, सुकून में तब्दील करेंगे। तो बनेगा इफ अल। इफ अल का माना कर, फ़अला माना उसने किया, यफ़अलु वो करता है या करेगा, और इफ़अल ऑर्डर आ गया, माना कर। फतह का माना क्या था? उसने खोला। यफ्तहु माना वो खोलता है या खोलेगा। अब अम्र आ गया, इफ्तह माना खोल, इफ्तह खोल। तो यह है अम्र बनाने का तरीका, आपके सामने है। इफ़अल कर, इफ़अलू करो। तो ये वाव ऐड कर दिया इसमें जमा में, यानी जमा कसेगा जमा से बनता है, आपने सीखा पीछे। तफ़अलु से बना इफ़अल। तफ़अलूना यानी जो जमा है, असल में तफ इफ़अल क्या था? तफ़अलूना, 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 तफ़अलूना। अब कैसे बनाएंगे अम्र आप? सबसे पहले क्या करेंगे? अलामत मुजारे हटाएंगे। अब यहां फा है, पढ़ नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे आप? फा पढ़ नहीं सकते हैं तो शुरू में हमज़े वस्ल लगाएंगे यहां पर, और हमज़े वस्ल कौन सा लगाएंगे? जेर वाला, क्योंकि आइन पे जबर है। और इसमें वाहिद में आप क्या करते थे? जज़म देते थे। और जमा में आप क्या करेंगे? यहां से नून गिरा देंगे, नून गिरा देंगे। और वाव के बाद अलिफ है, ये जमा के वाव की पहचान है। ये हम गुज़श्ता वीडियो में बता चुके हैं कि वाव के बाद अलिफ हो तो ये बताता है कि ये वाव जमा वाला है। तो इफ़अलू माना करो। तो जब वाहिद का सेगा वाहिद से बनेगा, जमा वाला सेगा जमा वाला से बनेगा। ये तफ़अलु से बना इफ़अल, तफ़अलून से बना इफ़अलू। तो इफ़अल कर, इफ़अलू करो। ऐसे ही मना, मना करने के लिए जो मुजारे है, मुजारे क्या था? तफ़अलु, तफ़अलु। तफ़अलु का माना क्या था? आप करते हैं या करेंगे। और अगर आप तफ़अलु जो है यहां पर मैं लिखता हूं तफ़अलु, तफ़अलु माना आप काम करते हैं या करेंगे। और ला तफ़अलु, गौर से समझें, ला तफ़अलु पेश है, माना आप नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। ये प्रेजेंट फ्यूचर नेगेटिव है, यानी ये मुजारे मनफी है, इसे मना नहीं कर रहे हैं आप, बल्कि किसी चीज के न होने की, न करने की खबर दे रहे हैं आप। तो ला तफ़अलु माना आप नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। ये मुजारे है, प्रेजेंट फ्यूचर नेगेटिव है। अब सिर्फ इसमें क्या करना है आपने? आखिर में जज़म देनी, जैसे यहां पर जज़म आ गया, ला तफ़अल। तो जो मुजारे था पेश, उसको आपने जज़म दे दिया, तो अब ये मुजारे नहीं रहा,
प्रेजेंट फ्यूचर नहीं रहा, अब ये बन गया नाही, मना, ला तफाल, मत कर। ये है फर्क मुजारे में और नाहे में, सिर्फ पेश और जज़म का। अब जो जमा था मुजारे में, तफआलू की जमा क्या थी? तफआलून, जो आज तक सीखते आप आए, वो तो पहले से सीख चुके आप। तफआलून, आप सब करते हैं या करेंगे। अब उसमें क्या करना आपने? ला तफआलून, नून अगर ऐड करेंगे हम तो ये बनेगा मुजारे, आप सब नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। या आपने एक्सरसाइजेस भी लिखी। जमा में क्या करेंगे आप? नून गिरा देंगे तो बनेगा नाही। वाहिद में क्या किया आपने? पेश की जगह जज्म दी। और जमा में क्या किया आपने? नून गिरा दिया तो बना ला तफअलू, मत करो। तो ये है अम्र बनाने का तरीका। और नाही, नाही का तरीका तो बड़ा इजी है कि जो मुजारे है, मुजारे में आखिर में पेश होता है, पेश को आपने जज्म देनी है। नून होता है जमा में तो नून गिराना है, तो बन जाता नाही, यानी मना। फतह यफ्तह से बनेगा अम्र, इफ्ताह, इफ्ताह माना खोल। फिर जमा इफ्ताहू, खोलो। ये क्या था असल में? मुजारे से बना। कैसे बना? तफ्ताहू से, इफ्ताह जो अभी सिखा चुके पीछे। और तफ्ताहूना, तफ्ताहूना, जरा देखिए, तफ्ताहूना, तफ्ताहूना। अब देखिए तफ्ताहूना से कैसे बनाएंगे आप अम्र? तफ्ताहूना में सबसे पहले अलामत मुजारे हटाएंगे। अब फा साकिन पढ़ नहीं सकते हैं तो क्या करेंगे? शुरू में हमजा वस्ल ऐड करेंगे। चूंकि ता यानी आइन कलमा जबर है तो हमजा जेर वाला लगाएगा। और मुजारे, ये जो अम्र है, अम्र का आखिर साकिन होता है और जमा में नून नहीं आता है, और नून क्या करेंगे? गिरा देंगे। और यहां जमा के वाव की पहचान जो है वो अलिफ है, वो ऐड कर दिया तो बन गया इफ्ताहू। तो तफ्ताहूना से इफ्ताहू। और नाही में क्या है? ये तो मुजारे था, ला तफ्ताहू, अगर आप पेश ऐड करते हैं तो ये मुजारे बनता है, प्रेजेंट फ्यूचर। ला तफ्ताहू, आप नहीं खोलते हैं, नहीं खोलेंगे। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, इसमें पेश की जगह जज्म दे दिया, जो कि यहां पर लगा हुआ है, ला तफ्ताह, मत खोल, अभी ऑर्डर आ गया। ऐसे यहां पर ला तफ्ताहू, मत खोलो। अगर इसको मुजारे आपने बनाना है तो नून ऐड करना है, ला तफ्ताहूना, आप नहीं खोलते हैं, नहीं खोलेंगे। फ़ैल अम्र और फ़ैल नाही, ये बनाने के दो तरीके हमने सीखे। आगे वाले सबक में फिर प्रैक्टिस होगी। जाला है तो जाला से आपने खुद बनाना है, जाला यज, यज आलू, इसी से आपने अम्र बनाना है, इसी से नाही बनाना है। ये आपके होमवर्क। बाकी इसके बाद जो और दूसरे अफ़आल हैं जिनसे हमने माजी सीखा, मुजारे सीखा, अम्र, उनसे अम्र भी सीखेंगे आइंदा 15 में, फिर 16 में। इस तरह और भी इसकी मशकें आएंगी। परेशान होने की जरूरत नहीं, बार बार इस वीडियो को देखें ताकि ये अच्छी तरह समझ में आपको सबक आ जाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा सीखना है कि अगर एक्सरसाइज जो हमारी होती है उसमें लिखा होगा कि इफ़ाल मतलब कर, यानी आप ये काम करो, करो, तो आप सामने से क्या जवाब देंगे? हाँ मैं ये काम करूंगा। तो इफ़ाल कर, तो आप क्या जवाब देंगे? नाम अफ़अलु, नाम, नाम आप सीख चुके हैं पीछे, नाम, नाम माना हाँ, जी, अफ़अलु मैं करूंगा। या नाम सअफ़अलु, पीछे सीख चुके हैं, सीन, सीन और सौफा ये मुजारे पे आता है, मुस्तकबिल करीब और बईद के लिए। तो नाम सअफ़अलु, नाम सअफ़अलु मैं करूंगा। ऐसे जमा है इफ़अलु, तुम सब करो, इफ़अलु करो, तो आप सब क्या जवाब देंगे? नाम सनफ़अलु, जी हम करेंगे। सीन लगा दो या सीन के बगैर, दोनों तरीके से, नाम नफ़अलु या नाम सनफ़अलु, हम करेंगे। ऐसे इफ़अल खैरा, अच्छा करो, तो आप क्या कहेंगे सामने से? वाहिद है तो वाहिद का जवाब वाहिद से देंगे, नाम अफ़अलु, अफ़अलु खैरा या सअफ़अलु खैरा। इसी तरह इफ्ताह है, इफ्ताह का जवाब खोल, तो आप क्या बोलेंगे? जी मैं खोलता हूं। इफ्ताहू खोलो, अलबाब दरवाजा, अल किताब किताब, अल कुरान कुरान खोलो, आप क्या जवाब देंगे? नाम नफ्ताहू या सनफ्ताहू अल कुरान। इफ्ताह अल किताब, किताब खोल, तो जवाब क्या आएगा? अफ्ताहू, अफ्ताहू अल किताब, मैं किताब खोलता हूं। या नाम
सअफ्तहुल किताब, जी मैं जल्दी किताब खोलूंगा। इफ्तहू अल किताब जमा के लिए, तुम सब किताब खोलो। तो नफ्तहू अल किताब, हम किताब खोलेंगे। तो खुलासा फिर समझ लें कि सुलासी तीन हरफी फ़ेल के चार अबवाब जो हम पहले सीखते आए हैं, सबक नंबर 12 में भी 13 में भी। इसमें आइन कलमा बड़ा अहम है, यानी बीच वाला हर्फ। ये बीच वाला हर्फ आइन कलमा कहलाता है। तो आज हमने सीखा कि मुदारे से अम्र बनाते हैं हम, मुदारे से, कि अगर आप अलामत मुजारे को हटा देते हैं तो फा जो है वो साकिन है, उसको पढ़ नहीं सकते, इसलिए हम हमजे वस्ल ऐड कर देते हैं इसमें। तो और लास्ट में पेश की जगह जज्म लगा देते हैं, तो बनता है इफ्ताह। आइन कलमा जबर है। अब बाकी मिसालें हम आइंदा हफ्ते और जो सबक आएंगे उनमें सीखेंगे। तो आज हमने ये इतना सीखा। ये वीडियो बार बार देखें, एक ही मर्तबे में सारा कुछ समझ में नहीं आएगा। नोटबुक रखें साथ में और फिर ये नोट करते रहें जो जो चीजें समझाई गई। खुद प्रैक्टिस करें कि किस तरीके से फ़ैल अम्र और फ़ैल नाही बन रहा है किसी भी फ़ैल से। तो बाकी तफसील इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते सीखेंगे। एक्सरसाइज शो की जा रही, आप इस एक्सरसाइज को पढ़ें, इसको लिखें, फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजें। अगर साफ नजर नहीं आ रही तो हमसे आप इसकी सही फोटोकॉपी मांग लें। अल्लाह ताला हमारे लिए पढ़ना, पढ़ाना, समझना, समझाना कबूल फरमाए, इसे हमारे लिए दुनिया और आखिरत में नजात का जरिया बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।